Hello? Hello, you can see it, Elena. Yes. So, I do now. I think my internet is not so good. I think that's fine. You can continue. Now it's fine. Oh, just Kind of fine. now. Oh, so I need to introduce myself again, Yes. right? Okay. I'm really sorry. Maybe my internet is not so good. So I will just introduce myself again. And I'm Elena, and I'm from China. And I'm really happy to be able to connect with all of you, and really exciting to also be part of the Zhenju family. Zhenju is a wonderful platform that helps students like you grow your skills with the guidance of industry experts, just like here in China, where we also train children from a very young age in area like manufacturing, ITs, and marketing. And Zhenju is doing the same thing here. I think esports and prepare you for a successful professional journey. And to all the students, keep learning, stay curious, and keep growing. This organization and I will always be here to support you. I'm also very happy to be able to and passionate about teaching. I'm sure you learn a lot from him and achieve great things in your life. And all the best to you. Thank you so much. Thank you, Can you Elena. hear me? Thank you so much. Okay, everyone is giving you thumbs up and hearts. They really like you. Yes, I really like to. So, do you want to say something else, or I think you have lots of work? Okay, I know you are very busy. So, Yes, I'm a little busy. I'm really sorry. no, nobody. Everyone have their own work. So this is the time to say bye to the Alina. And that was wonderful to meet with you, Alina. Thank you so much for this special guest appearance in my meeting, in my session. And thank you so much for everything. Okay. Okay, also thank you for all of you. Nice to see all of you. Thank you. And okay, so now should we start the session? Thank you so much, Alina. Now you can go for your work. Okay. Okay, bye bye. Thank See you you. next time. Thank you. So everyone, how was this guest appearance? कैसा लगा सबको? वो कंपनी वगैरह के बारे में बताने आई थी बेसिकली, बट उनका जो नेटवर्क इशू था वो कुछ ज़्यादा हो चुका था, ठीक है. सो क्योंकि वो बहुत दूर से था एंड देन वहाँ पे कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम था, उन्होंने मुझे बताया भी कॉल वगैरह पे. सो उनको वर्क भी था एंड देन उनका नेटवर्क इशू भी वर्क नहीं कर रहा था. सो ना तो आपका टाइम वेस्ट करना था, ना खुद का टाइम वेस्ट करना था. सो जो भी था, आई थिंक दैट वाज गुड. ओके, should we start the session now? एक मिनट, लखन इतना बोल तो रहे हो. This is not good. Okay, this is not good. She is our guest and we should not say like that. Okay. चाइना छोड़ो इंडिया की भी तो सेम प्रॉब्लम है. नेटवर्क इशू कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है. नेटवर्क इशू कंट्री पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है.
Okay, so should we start the session? Just give a thumbs up to me quickly. आज का सेशन ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, बट इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज क्या बोलते हैं, हाँ, इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओह, अच्छा देवांश, आपको पता है वहाँ पे एयरटेल है या नहीं है? क्या बात है। और कौन कौन सी कंपनी है वहाँ पे देवांशु? सो आज का जो चलो सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो आज का ओके या you can see that Gen Z Yug is typing that she's one of the partner of this company, ठीक है, and she's not just for the connecting here, she is from Gen Z Yug side, and she was trying to guide you, okay. Now let's start the session, ठीक है। सो आज का जो सेशन होने वाला है वो हम जो कल मैंने आपको CSS की प्रॉपर्टीज बताई थी उससे हम आगे जाके जो सेशंस है मतलब जो आगे जाके प्रॉपर्टीज है हम वो ध्यान में रखने वाले हैं, ठीक है। उसके बारे में हम जानने वाले हैं आगे की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। सो कल ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज हो गई थी एंड मैंने आपको वर्क भी दिया था, ठीक है, कि आपको वो एक यूटी का कार्ड बनाना था, ठीक है। तो आप में से कौन कौन लोग करके लेके आए हैं? Okay, that's very great, Neha. Okay, Aarti and Vinith and anyone else? तो मैं आपकी जो भी चीज़ें हैं वो चेक भी कर दूंगी, बट तो आज बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स ना जब भी आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है, क्योंकि उसमें रिस्पॉन्सिवनेस के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो आप वो जो वेबसाइट है उसके अंदर वो रिस्पॉन्सिवनेस शो करता है, ओके। और वो कैसे करता है वो आज हम देखने वाले हैं। फ्लेक्स बॉक्स की खुद की ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जिसमें वो फ्लेक्स कंटेनर बनता है, देन इसके अंदर जो चाइल्ड्स होते हैं उसको फ्लेक्स आइटम्स वगैरह बनाते हैं एंड कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन, ओके। मैं एक बार शो कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो हम सबसे पहले एक बार यही देख लेते हैं, वरना वापस में स्लाइड्स में जाना पड़ेगा, देन वापस मीटिंग में आना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो पहले मैं जिन लोगों ने अपनी कोडिंग प्रैक्टिस कर ली है एक बार आप वो शो कर दो, क्योंकि आई थिंक वो उनका जो नंबर है वो बहुत कम है, बहुत कम लोगों ने कल वाली कोडिंग प्रैक्टिस की है ना। सो नेहा, आई थिंक यू हैव रेज्ड द हैंड, सो प्लीज शो योर स्क्रीन एंड शो मी योर प्रोजेक्ट इन कोडिंग प्रैक्टिस व्हाटएवर यू हैव डन। Okay, that's very great. That's nice. That's nice. Okay, now you can shut it. You can stop sharing it. Anyone else who have done same like this? Okay, Aarti, you can share your screen now. Okay, that's great. So you know what आरती, जैसे आपने इनको इस तरीके से एक के नीचे एक अलाइन किया है, आज हम उसको ही सिमिलर लाइन में अलाइन करना सीखेंगे यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। सो नाउ यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन। ओके, सो just give me a second. Now let me share my screen to you all. कार्तिक, ऐसे कैसे आपने किया है कि चल ही नहीं रही है? ऐसे तो नहीं करना चाहिए था ना आपको। 2 बार चेक करा करो खुद से ही कि क्या सच में जो मैंने बनाया है वो चल रहा है या वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, देन उसके बाद के अंदर आपको
और पूरा आपको बहुत टाइम मिलता है, ठीक है। सुबह में आपसे सेशन करवा देते हैं, पूरा दिन मिलता है आपको वर्क करने के लिए, तो आप 2-3 बार रन करके देख सकते हैं उसको, ठीक है। एंड चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने किया तो है, बाकियों ने तो किया भी नहीं है। ओके, स्क्रीन दिख रही होगी आपको, दैट्स गुड। तो मैंने जैसे आपको सबको बता दिया कि आज हम फ्लेक्स बॉक्स एंड उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, जो कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्रिएट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर जो फ्लेक्स बॉक्स है उसके अंदर एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होती है जो केवल इसी के अंदर यूज कर सकते हैं। एंड फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसका जो डिस्प्ले है, यानी कि जो कंटेनर एलिमेंट है, उसके अंदर आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऐड करो और उसकी जो वैल्यू है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसमें आप फ्लेक्स लिखो, तभी आपका जो बॉक्स है वो फ्लेक्स बॉक्स बन पाएगा और जो फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज है आप उसको ऐड कर पाएंगे, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट सेशन देखो, फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने कल की कोडिंग प्रैक्टिस आपको चेक कर दिया, ओनली 2 लोगों ने मुझे दिखाई है जो मैंने कोडिंग प्रैक्टिस की है, एंड दैट्स वेरी ग्रेट। ओके, आप लोगों ने करा है, बहुत अच्छी बात है। और अब कल से मैं आपकी जो कोडिंग प्रैक्टिसेस है वो चेक नहीं करने वाली हूँ, और मैं कर भी सकती हूँ तो विश्वास मत करना मेरा, ठीक है। इस मैटर के अंदर तो विश्वास मत ही करना, क्योंकि मैं चेक कर भी सकती हूँ और नहीं भी कर सकती, तो आपको प्रिपेयर रहना है, अपने एंड से आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। नाउ फर्स्ट स्लाइड हमारी आज की ये है, जो मतलब प्रॉपर एक एक्सप्लेन करने वाली स्लाइड है, वो है साइजिंग एलिमेंट, ठीक है। साइजिंग एलिमेंट क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जब हम एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो खुद की एक डिफरेंट साइज ले लेता है, ठीक है। वो अपनी साइज ले लेता है कि उसको पूरा विड्थ अपनी कवर करनी है, या फिर जितना, या फिर उसको प्रॉपर हाइट कवर करनी है, ठीक है। वो उसकी खुद की एक स्टाइल होती है, ठीक है, जो उसकी नेचुरल स्टाइल कह सकते हैं अपन, ठीक है। उसको हम इंट्रिंसिक स्टाइल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सम एलिमेंट्स हैव अ नेचुरल साइज सेट बाय डिफॉल्ट, वी कॉल इट इंट्रिंसिक साइज, ठीक है। यानी कि जिन एलिमेंट्स की नेचुरल साइज होती है, जो बाय डिफॉल्ट सेट होती है जो साइज, उसको हम इंट्रिंसिक साइज कहते हैं। लेकिन अगर हमने उसके अंदर लगा दी CSS प्रॉपर्टी, हमने लगा दी क्लास ID, एंड उसके अकॉर्डिंग हमने चेंज कर दी उसकी स्टाइल को, हाइट को, विड्थ को, साइज को, ठीक है, तो क्या होगा? ये उसको हम एक्सट्रिंसिक साइज कहेंगे, ठीक है। यानी कि उसको हम एक्सटर्नली जिस साइज को हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो सिंपली इससे पता चलता है कि 2 टाइप की साइजेस होती है, एक होती है इंट्रिंसिक साइज, एक होती है एक्सट्रिंसिक साइज, ठीक है। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये आगे जाके आपको पता चलने वाला है, क्योंकि जो मैक्स विड्थ एंड मैक्स हाइट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जानने के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके, सो इससे पहले मैं आपको इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड बताता हूँ, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है। एंड ओवरफ्लो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपको मिन हाइट एंड मिन विड्थ एंड ये जो मिन मैक्स वाली प्रॉपर्टीज है, ये आपको एक्सप्लेन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपको इसका एग्जांपल देके भी बता पाऊंगी कि ओवरफ्लो प्रॉपर्टी क्या करती है, ठीक है। सो मिन एंड मैक्स साइज, यहाँ पे 2 ओके, सो ये थर्ड स्लाइड है हमारी। तो मिन हाइट एंड मिन विड्थ, ठीक है, ये CSS की प्रॉपर्टी है जो कि यूज होती है किसी भी एलिमेंट की मिनिमम हाइट एंड मिनिमम विड्थ शो करने के लिए। अब मिनिमम हाइट एंड मिनिमम विड्थ से क्या मतलब है आपका? इससे मतलब ये है कि मैंने सेट कर दी, कोई डिव है, उसकी मिनिमम हाइट मैंने सेट कर दी 100 पिक्सल्स, ठीक है। 100 पिक्सल मैंने उसकी मिनिमम हाइट सेट कर दी, तो अब वो 100 पिक्सल से कितना भी ज्यादा हो सकती है उसकी हाइट, ठीक है। आप अगर चाहो, अगर फॉर एग्जांपल आपने उसके अंदर नॉर्मल हाइट दी, या फिर उसके अंदर आपने कोई एलिमेंट ऐड किया, ठीक है, तो उसमें भी उसकी साइज बढ़ जाए, ठीक है, वो 100 पिक्सल से बढ़ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस 100 पिक्सल से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उससे क्योंकि वो मिनिमम हाइट है उसकी, ठीक है, क्योंकि उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है। सेम फॉर द विड्थ, मिनिमम विड्थ होती है कि जहां पे आप जो उस डिव की जो विड्थ है उसको आप, जो मिनिमम विड्थ आपने दे रखी है, चाहे आपने 100 पिक्सल दे रखी है, चाहे आपने 50 पिक्सल दे रखी है, उससे ज्यादा तो आप कर सकते हो, लेकिन उससे कम आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो किसी आपने एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है इसकी साइज इससे कम नहीं होने वाली है, ठीक है, इसकी साइज इससे कम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये किस चीज पे यूज होता है? जब आप रिस्पॉन्सिवनेस लेके आते हो अपनी वेबसाइट के अंदर, जब आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल के अंदर चल रही होती है, तब उस टाइम पे आप
मिन हाइट और मिन विड्थ यूज कर सकते हो, ताकि जो सेम काइंड ऑफ यूआई जो आपको वेबसाइट पे दिख रही है वो सेम यूआई आपको मोबाइल पे भी दिखे। हम रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं आगे के जो लेक्चर्स है, जो सेशंस है उसके अंदर, ठीक है, जो जिसमें हम बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे जो हमारी जो वेबसाइट है उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे तो सिंपली हम क्या यूज कर रहे हैं, मिन हाइट एंड मिन विड्थ हमने समझ लिया, मिन हाइट एंड मिन विड्थ को, जो कि उसकी मिनिमम साइज के बारे में बताती है। इससे ज्यादा साइज कितनी भी हो सकती है, लेकिन इससे कम बिल्कुल नहीं होएगी, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। नाउ नेक्स्ट क्या है, मैक्स हाइट एंड मैक्स विड्थ। अब आप मैक्सिमम के बारे में तो समझते ही होंगे कि जो इसकी मैक्सिमम हाइट अगर हमने 100 पिक्सल डाल रखी है या मैक्सिमम विड्थ हमने 100 पिक्सल डाल रखी है, तो मैक्सिमम विड्थ से ज्यादा कोई भी पिक्सल उसके अप्लाई नहीं होंगे, 150 अप्लाई नहीं होगा, कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, लेकिन हाँ उसकी कम हो सकती है, 100 पिक्सल से कम हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने जैसे ये पैराग्राफ लिख रखा है, चलिए यहाँ पे आपने मैक्स हाइट डाल रखी है, ठीक है, तो उसकी हाइट 180 पिक्सल से ज्यादा नहीं होगी, चाहे आप कोई भी इसके अंदर कोई भी फंक्शनलिटी अप्लाई कर दो या फिर इसके अंदर आप कुछ भी ऐड कर दो, लेकिन उसकी जो हाइट है या फिर कितना भी इस पैराग्राफ के अंदर कंटेंट ऐड कर दो, इसकी जो हाइट है वो 180 पिक्सल से आगे नहीं जाने वाली है, ठीक है। एंड सेम फॉर द मैक्स विड्थ, ठीक है। तो ये मिन साइज एंड मैक्स साइज बहुत इंपॉर्टेंट थी सीएसएस की ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को जानने के लिए। नाउ ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के लिए देख लेते हैं एंड देन उसका हम वीएस कोड के ऊपर इंप्लीमेंट देखेंगे, और फिर मैं आपसे क्वेश्चन कर लूंगी कि आपको ये समझ में आई है या नहीं आई है, क्योंकि इन दोनों स्लाइड्स को सेम मतलब साथ में पढ़ाना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी क्या करती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपन ओवरफ्लो किसे कहते हैं, ठीक है। अब हमने बाथरूम के अंदर बकेट रखी, बकेट में हमने पानी भर रहे हैं और वो पानी बाहर निकलेगा, पूरी बकेट पूरी फुल हो गई, पानी बाहर निकला है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओवरफ्लो हो गई बकेट, ठीक है। तो सिमिलरली कंसिडर करो कि हम एक पैराग्राफ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, हमने एक पैराग्राफ क्रिएट किया एंड उसमें हमने उस पैराग्राफ की कुछ हाइट दे दी एंड कुछ पैराग्राफ की विड्थ दे दी, ठीक है। एंड देन कुछ कह रहा है, म्यूट रखो अपना माइक, ठीक है। तो हमने उस जो पैराग्राफ है उसकी हमने हाइट दे दी एंड पर्टिकुलर उस पैराग्राफ की हमने कोई विड्थ दे दी, ठीक है, और हमने उसके बीच में बहुत सारा टेक्स्ट कंटेंट डाल दिया जो उस हाइट एंड उस विड्थ के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो वो क्या होगा, जो टेक्स्ट कंटेंट है वो उस हाइट एंड विड्थ से बाहर ओवरफ्लो होने लग जाएगा, ठीक है, वो उससे बाहर ओवरफ्लो हो जाएगा। तो उस ओवरफ्लो को हैंडल करने के लिए हमारे पास में एक प्रॉपर्टी होती है सीएसएस के अंदर जिसको हम कहते हैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंटेंट ओवरफ्लो हैंडल्ड यूजिंग द सीएसएस ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। जो कंटेंट है, जैसे अभी जो पैराग्राफ टैग्स है, जो ओपनिंग टैग है और जो एंडिंग टैग है, उसके बीच में जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उसको हम कंटेंट ही कहते हैं। अब कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा हाइट से, तो वो क्या करेगा, ओवरफ्लो करने लग जाएगा, ठीक है, और हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो यूआई है वो खराब हो जाती है। किस कारण से खराब हो जाती है, अगर कंटेंट ओवरफ्लो जा रहा है तो हो सकता है कि वो जो कंटेंट है किसी दूसरी डिजाइन के ऊपर ओवरलैप कर रहा हो, तो इससे जो डिजाइन बिल्कुल सही नहीं लगती है एंड यूआई यूएक्स डेवलपर के अकॉर्डिंग भी, और जो हमें आइडियल जो हमें यूआई दे रखी है उसके अकॉर्डिंग भी मैच नहीं करती है। तो इसके लिए ओवरफ्लो प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का जो पहली वैल्यू है वो होती है विजिबल, जो कि बाय डिफॉल्ट होती है, तो इसको कोई यूज करने की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें बेसिकली क्या होता है, ये ओवरफ्लो होने देता है, ठीक है, बोले कि ओवरफ्लो हो जाओ लेकिन डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है, डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद में ओवरफ्लो हिडन आता है। ओवरफ्लो हिडन का मतलब क्या होता है कि जो ओवरफ्लो, जितना ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास में 5-6 लाइनें हैं, ठीक है, ओवरफ्लो हैंडल करना है हमें और वो 5-6 लाइनें हैं, ठीक है, और हम नहीं चाहते हैं कि वो उससे जितना हमने उसकी हाइट एंड जितना हमने उसकी विड्थ दी है उससे आगे जाए। तो अगर हमने उसकी हिडन कर दी तो मान लो वो 3 लाइनें ही शो करेगा, बाकी के जितना भी ओवरफ्लो हो रहा है, जितनी भी लाइन का ओवरफ्लो हो रहा है उन सबको वो हाइड कर देगा। इससे क्या होगा, जो 3 लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं, उसका डेटा लॉस हो जाएगा। डेटा लॉस का मतलब क्या समझते हैं आप, डेटा लॉस का मतलब वो नहीं दिखेंगी, ठीक है, वो दिखना बंद हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो विजिबल का मतलब आप ओवरफ्लो होने दो, हिडन का मतलब कि जितना ओवरफ्लो हो रहा है उसको हाइड कर दो, ठीक है, उसको हाइड कर दो। देन ओवरफ्लो स्क्रॉल का मतलब क्या है कि आपको स्क्रॉल बार आने लग जाएगा। जैसे आपने ओवरफ्लो स्क्रॉल दिया तो पैराग्राफ के अंदर स्क्रॉल बार आने लग जाएगा, ताकि आपका जो डेटा आप उसमें स्क्रॉल कर सको और आपका जो डेटा है
वो ओवरफ्लो भी नहीं हो, साथ के अंदर आपका डेटा लॉस्ट भी नहीं हो, ठीक है, ये दोनों काम करता है, समझ रहे हैं। देन उसके बाद में आता है ओवरफ्लो ऑटो। तो कंसीडर करो कि हमने कुछ पैराग्राफ कंटेंट ऐसा लिखा जो ओवरफ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन स्टिल उसके अंदर स्क्रॉल बार आ रहा है, ठीक है। तो जो भी यूजर होगा वो सोचेगा ओके देयर इज सम कंटेंट, तो मुझे स्क्रॉल करना चाहिए उस कंटेंट को देखने के लिए, ठीक है, लेकिन उसको कोई कंटेंट नहीं मिलेगा क्योंकि उस स्क्रॉल बार ऐसे ही आ रहा था, क्योंकि हमने स्क्रॉल प्रॉपर्टी, जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो मैं कहाँ थी, एक मिनट, एम आई विजिबल नाउ, ओके, यस। तो मैं थी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के अंदर, जिसमें मैं आपको बता रही थी ओवरफ्लो ऑटो। ओवरफ्लो ऑटो सेम ओवरफ्लो स्क्रॉल की तरह ही होता है, ठीक है, जिसमें आपको स्क्रॉल बार मिल जाएगा। लेकिन ऑटो का मतलब यहाँ क्या है कि जब कोई भी टेक्स्ट कंटेंट ओवरफ्लो होगा, केवल उसी कंडीशन के अंदर हमें स्क्रॉल बार दिखेगा, ठीक है। जैसे ओवरफ्लो स्क्रॉल में तो क्या था कि चाहे ओवरफ्लो हो रहा हो, चाहे ओवरफ्लो नहीं हो रहा हो टेक्स्ट कंटेंट, स्टिल वहां पे स्क्रॉल बार दिखेगा, ठीक है। यूजर कंफ्यूज हो सकता है कि मे बी यहाँ पे कोई ना कोई टेक्स्ट कंटेंट है, इसलिए वहां पे स्क्रॉल बार दिखेगा। लेकिन जो ओवरफ्लो ऑटो है उसके अंदर केवल स्क्रॉल बार तभी शो होगा जब नेसेसरी होगा, जब ओवरफ्लो हो रहा होगा, ठीक है, वरना आपको वहां पे कोई भी स्क्रॉल बार नहीं दिखेगा। सिमिलरली ओवरफ्लो प्रॉपर्टी की जैसे ही हमारे पास में दो और प्रॉपर्टीज होती हैं, जो होती है ओवरफ्लो एक्स एंड ओवरफ्लो वाई। इन दोनों प्रॉपर्टीज का आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक स्क्रॉल बार ऐड करने के, या फिर स्क्रॉल बार ऐड कर सकते हो, या फिर आप जो ओवरफ्लो है उसको हैंडल कर सकते हो ओवरफ्लो एक्स से, ठीक है। एंड ओवरफ्लो वाई से आप वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर ओवरफ्लो को हैंडल कर सकते हो या फिर स्क्रॉल बार को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम एक बार ट्राई कर लेते हैं, देन मैं आपसे पूछूंगी कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं VS कोड में जा रही हूँ, एंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक पी टैग है, ठीक है, पी टैग है, एंड मैं इसको कुछ स्टाइलिंग दे रही हूँ, इसमें बहुत सारा टेक्स्ट कंटेंट है, ठीक है, ठीक है, इसमें बहुत सारा टेक्स्ट कंटेंट है और मैं इसमें कुछ स्टाइल दे रही हूँ, ओके। तो फर्स्टली तो क्या है, मैं दूंगी इसमें हाइट, ठीक है। पहले मैं आपको बिना स्टाइल के करके दिखाती हूँ, आपको पहले बिना स्टाइल के रन करके दिखाती हूँ, ताकि आपको पता चले कि डिफरेंस क्या आए, ठीक है। ये जो नेक्स्ट बॉक्सेस हैं ये मैंने केवल फर्दर जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसके लिए बनाया हुआ है, ठीक है। अभी के लिए एक मिनट, मैंने ऊपर दे रखी है, ओके ओके ओके। बिना स्टाइलिंग के आपको शायद कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसने पूरी विड्थ को हैंडल कर रखा है, मतलब पूरी विड्थ को कवर कर रखा है इस पैराग्राफ के जो भी कंटेंट है, ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ पे मैं हाइट एंड विड्थ देती हूँ ओनली, एक बार इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, मैंने ओनली दी हाइट 100 पिक्सल एंड मैंने दी विड्थ 100 पिक्सल, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्या होता है, ओके एक बार मैं इनको भी हटाती हूँ क्योंकि वो ओवरलैप कर रहे हैं, इसीलिए मैंने बताया था कि ओवरलैप क्यों ओवरलैप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किसी दूसरे के ऊपर ओवरफ्लो शो हो रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये प्रॉपर उसने जितनी मैंने उसको विड्थ दी थी उसी विड्थ के अंदर ये एडजस्ट हो चुका है पैराग्राफ, ठीक है। जितनी मैंने उसको विड्थ दी थी उतनी विड्थ के अंदर पैराग्राफ शो हो रहा है, ठीक है। नाउ मैं आपको दिखाती हूँ कि ओवरफ्लो किस तरीके से देखेंगे अपन इसके अंदर। ओवरफ्लो देख रहे हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है। ओवरफ्लो देखने के लिए आपको सिंपली बॉर्डर लिखना है, जैसे मैंने आपको कल बताया था 2 पिक्सल सॉलिड रेड डाल देते हैं।
अब आपको पता चल रहा होगा कि जो 100% जो 100 पिक्सल विड्थ है और जो 100 पिक्सल हाइट है वो केवल इतनी दूरी में है, यानी कि जो इतना कंटेंट है वो हमारा ओवरफ्लो हो रहा है। और अगर हम इसके नीचे कोई भी डिजाइन या फिर कोई भी एलिमेंट ऐड करेंगे तो ये जो जितना भी ओवरफ्लो कंटेंट है वो उसके ऊपर से भी जाएगा, ठीक है। इसीलिए अभी हमें ओवरफ्लो यहाँ पे यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ओवरफ्लो। सबसे पहले हिडन देख लेते हैं, इस हिडन से क्या होता है। हिडन से जितना भी नीचे कंटेंट था वो हाइड हो चुका है एंड मैं इसको स्क्रॉल भी नहीं कर सकती हूँ हिडन के कारण। तो यहाँ पे डेटा लॉस्ट हो चुका है, आगे का डेटा मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही हूँ, ठीक है। इसलिए हम हिडन तो ये तो कभी नहीं करेंगे, ठीक है। ये जरूर हो सकता है कि जैसे आपने कई बार व्हाट्सएप के अंदर देखा होगा कि यहाँ पे रीड मोड लिखा हुआ आता है, देन आप उस पर क्लिक करते हो तो शो हो जाता है, ठीक है। या फिर आप दूसरे कई बार अगर आपने वेबसाइट के ऊपर भी ऐसे रीड मोड पे क्लिक किया होगा तो पूरा ब्लॉक खुल जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशंस के अंदर ये जो ओवरफ्लो हिडन है वो वर्क कर सकता है, ठीक है। यानी कि हर प्रॉपर्टी के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है उनको क्रिएट करने का, उनको यूज करने का। नाउ हिडन हमने यूज कर लिया। विजिबल बाय डिफॉल्ट होता है, विजिबल मतलब ओवरफ्लो शो होना, वो हमने पहले ही देख लिया था बिना ओवरफ्लो प्रॉपर्टी लगाए हुए। नाउ हम स्क्रॉल देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल आ चुका है। अब ये इस साइड भी स्क्रॉल आ रहा है एंड इस साइड भी स्क्रॉल आ रहा है, लेकिन मैं इस साइड करूंगी तो मुझे सारा कंटेंट मैं इजीली पढ़ सकती हूँ। जितना भी कंटेंट है पूरा मैं पढ़ सकती हूँ इससे इजीली, ठीक है। नाउ दूसरा देखते हैं। तो ये तो हो गया स्क्रॉल। अब हमें पढ़ना है ऑटो। तो अगर मैं ऑटो कर रही हूँ, ठीक है, तो देखते हैं फिर क्या होता है। ऑटो से यहाँ पे जरूरत है, अभी आपको सेम लग रहा है कि यहाँ पे जो स्क्रॉल बार है उसकी वजह से ही ये शो हो रहा है। जैसा स्क्रॉल में मैंने लिखा था वैसे ही आपको यहाँ पे ओवरफ्लो दिख रहा होगा। नाउ मैं थोड़ा सा टेक्स्ट कंटेंट कम करती हूँ, देखते हैं कि अब स्क्रॉल बार आता है या नहीं आता है, वरना हमें सिंपली पता चल जाएगा कि चलो ठीक है यहाँ पे यूज नहीं होगा। लेट्स सी, स्टिल यहाँ स्क्रॉल बार है, तो यानी कि यहाँ पे जरूरत है इतनी, और कम करना होगा। अब चेक करते हैं, ठीक है। अभी स्क्रॉल बार नहीं दिख रहा है। हमने क्या लिखा था, ओवरफ्लो ऑटो, जिसमें जब ओनली जरूरत होती है केवल उसी कंडीशन के अंदर स्क्रॉल बार आता है। जब मैंने पहले टेक्स्ट कंटेंट कम किया था या फिर मतलब कम नहीं भी किया था उस टाइम पर भी और कम किया था उस टाइम पर भी, इसको जरूरत थी कि इतने से प्लेस के अंदर ये एडजस्ट नहीं कर सकते उन सब चीजों को, इसीलिए उसने स्क्रॉल बार ऐड करने की कोशिश करी है, फिर ऐड कर ही दिया। लेकिन जब टेक्स्ट कंटेंट इतना कम है कि कोई जरूरत नहीं है हमें स्क्रॉल बार ऐड करने की, तो उस टाइम पे इसने स्क्रॉल बार लगा ही नहीं, ठीक है। देन दूसरी चीज ये होती है कि मैं एक बार यहाँ पे कंट्रोल सेट करती हूँ, जितना भी कंटेंट है वो सारा मेरे पास में वापस आ चुका है। अब मैं यहाँ पे ओवरफ्लो एक्स यूज करती हूँ, ठीक है। इसमें मैं ऑटो डालती हूँ। ओवरफ्लो एक्स में ऑटो डाला तो ओनली केवल एक मिनट ठीक है। यहाँ पे केवल एक्स साइड के अंदर ही यहाँ पे आपको स्क्रॉल बार दिख रहा है, ठीक है। यानी मैंने ओवरफ्लो मैंने डाला y, ठीक है। तो आपको y साइड में, ओके, ये y साइड है एंड देन ये x साइड है, ठीक है। x साइड में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, y साइड में आपको दिख रहा है स्क्रॉल बार, ठीक है। अब अपन स्क्रॉल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अपन इजीली इसको पढ़ सकते हैं इसलिए, बट लेकिन हमने ऑटो ऐड नहीं किया था इसलिए हमें स्टिल स्क्रॉल बार यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली आप सेम प्रोसेस आप ओवरफ्लो y के लिए भी कर सकते, सॉरी x के लिए भी कर सकते हैं। जब आप x के ओवरफ्लो x स्क्रॉल लिखेंगे, ऑटो लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे शो करेगा स्क्रॉल बार, ठीक है। तो ये हमारी ओवरफ्लो प्रॉपर्टी थी और मिन मैक्स की प्रॉपर्टी थी। ओके, मिन मैक्स की प्रॉपर्टी हम आगे भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैक्स हम ऐड कर देते हैं। ये यूज आती है जब आप मीडिया क्वेरी पढ़ते हो ना, तो मीडिया क्वेरी के अंदर आपको ऐड करना होता है।
ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम जो मैंने क्या दिया था, मैक्सिमम हाइट उसने 100 पिक्सल थी, तो अब इस मैक्सिमम हाइट इतनी है, इससे कम इसकी हाइट नहीं होगी चाहे अपन कुछ भी कर लें, ठीक है। तो ये जो बेसिकली चीज़ें हैं, जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये यूज़ कहाँ आती है, ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ आती हैं जब हम मीडिया क्वेरी यूज़ करते हैं। मीडिया क्वेरी हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर सके। हालांकि एक फ्रेमवर्क भी हमारे पास में जिससे हम रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं वेबसाइट को, उसका नाम है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप या टेलविंड से आप अपनी जो वेबसाइट है उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। एंड स्टिल अगर आपको वो भी नहीं आते हैं फ्रेमवर्क, तो आप सिंपली मीडिया क्वेरी यूज कर सकते हैं, जो कि CSS के अंदर ही एक फीचर है, ठीक है। तो हाइट हम मैक्स विड्थ एंड मैक्स हाइट हमने मिन विड्थ और मिन मैक्स हाइट इन सबको हमने समझ लिया है। जो भी साइजिंग थी इन सबको हमने देख लिया, ओवरफ्लो को हमने देख लिया, एक्स वाई को देख लिया, उनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हमने देख लिया। एंड हाँ, एक और चीज, जब आप ओवरफ्लो एक्स एंड ओवरफ्लो वाई यूज करते हैं, तो जैसे मैंने बताया विजिबल, हिडन, ये स्क्रॉल, ऑटो, ये सब आप उनमें भी सिमिलर तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आपको जो मैंने ओवरफ्लो प्रॉपर्टी और जो मैंने मैक्स एंड मिन साइजेस पढ़ाई, क्या आपको समझ में आई? ओके, दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो नाउ हम दूसरी पे जाते हैं, क्योंकि मे बी थोड़ा लेट हो सकता है। ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है, हेक्टिक भी नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ओवरफ्लो हो गई थी, मैक्स साइज मिन मैक्स हो गया था। नाउ लेआउट। लेआउट क्या होता है? जब आपको वेबसाइट क्रिएट करनी होती है, आप ऐसे ही तो जाके कोड करने नहीं लग जाते हो, ठीक है। आपको चाहिए होता है एक डिजाइन, ठीक है, जो आपको UI UX प्रोवाइडर क्रिएट करते हैं, या फिर आपके माइंड में कोई ना कोई डिजाइन होनी चाहिए जो शो कर सके कि अच्छा, मुझे ये पर्टिकुलर वेबसाइट, मतलब ये पर्टिकुलर डिजाइन मेरी वेबसाइट में चाहिए, ठीक है, या इस वे के अंदर मुझे मेरी वेबसाइट को डिजाइन करना है या क्रिएट करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपके पास में लेआउट होते हैं। लेआउट्स क्या होता है? पैटर्न होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, जो बताते हैं कि हमें एलिमेंट्स को किस तरीके से वेबसाइट के अंदर हमें ऐड करना है, या फिर हमें अरेंज करना है, या फिर हमें शो करना है, ठीक है। तो लेआउट बताते हैं कि किस तरीके से हमें एलिमेंट्स को, इंफॉर्मेशन को शो करना है, किस पैटर्न में हमें ये सब चीजें देखनी है या फिर हमें शो करनी है, ठीक है। नाउ मेनली देयर आर टू मेथड्स दैट हेल्प डिजाइन द वेब पेज लेआउट, ठीक है। तो यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं, एक तो होता है फ्लेक्सबॉक्स, एक होता है CSS ग्रिड। फ्लेक्सबॉक्स क्या काम करता है? फ्लेक्सबॉक्स बेसिकली जो HTML की एलिमेंट्स हैं उसको रो यानी हॉरिजॉन्टली एंड कॉलम यानी वर्टिकली वे के अंदर आपको अरेंज करके देता है, ठीक है। अब जैसे लेआउट का आप एग्जांपल इस तरीके से भी ले सकते हो, जैसे कि जब आप YouTube को ऑन करते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आपको ग्रे कलर के अंदर, अगर आपका जो YouTube है वो डार्क थीम के अंदर है, तो आपको ग्रे कलर के अंदर कुछ बॉक्स दिखाई देते हैं जब वो लोड हो रही होती है, वेबसाइट्स एंड थंबनेल्स ये सब लोड हो रहे होते हैं, तो डार्क बॉक्सेस दिख रहे होते हैं आपको, ठीक है। तो वो बताते हैं कि इस प्लेस के ऊपर वीडियोस आएंगे, इस प्लेस के ऊपर कंटेंट आएगा, ठीक है। तो वो लेआउट काइंड ऑफ चीज होती है कि आपको बता रहे होते हैं कि यहाँ पे लोड हो रहा है, ये पूरा लेआउट पेज लोड हो रहा है, ठीक है। नाउ ये मैंने लेआउट तो वैसे भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो दो चीजें होती है, फ्लेक्सबॉक्स एंड CSS ग्रिड। फ्लेक्सबॉक्स बेसिकली स्टेबल होता है, और CSS अभी भी इतना ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं ग्रिड को, ठीक है, क्योंकि इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। जितना फ्लेक्सबॉक्स फ्लेक्सिबल है, उतना CSS ग्रिड फ्लेक्सिबल नहीं है। स्टिल आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आज मैं आपको केवल फ्लेक्सबॉक्स के बारे में ही बताऊंगी, ठीक है। तो फ्लेक्सबॉक्स मैंने बता दिया कि आप हॉरिजॉन्टली एंड कॉलम वाइज यानी वर्टिकली एलिमेंट्स को आप अरेंज कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। नाउ CSS ग्रिड क्या होती है, ठीक है। CSS ग्रिड के अंदर जैसा अभी आप जैसे इंस्टाग्राम देखते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम के अंदर जब आई थिंक कौन सा टाइम था, आई थिंक 19 या 2019 या 20 का टाइम था, जब वो एक ऐप चालू हुए थे जिसमें आप ग्रिड क्रिएट कर सकते हो अपनी पोस्ट से, एंड देन अलग अलग आप पोस्ट कर सकते हो अपनी पूरी इंस्टाग्राम की जो फील्ड है उसमें बहुत बड़ी पोस्ट शो कर सकते हो, अगर आपको पता हो तो। बट स्टिल अगर आपको कंफ्यूजन है, तो ग्रिड का बेसिकली मतलब होता है कि किसी भी स्क्रीन को रोज एंड कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर देना, ठीक है। रोज एंड कॉलम्स को जब आप स्क्रीन में डिवाइड कर देते हो तो उसको हम ग्रिड कहते हैं, ठीक है। स्क्रीन को रोज एंड कॉलम्स में हम डिवाइड कर देते हो, तब हम उसको
ग्रिड कहते हैं, ठीक है, उसको ग्रिड लेआउट कहते हैं, यानी कि जो भी आप एलिमेंट बनाने वाले हो वो रोज में एंड कॉलम्स में शो होंगे, ठीक है। लेकिन फ्लेक्स बॉक्स में जरूरी नहीं है ऐसा, क्योंकि हो सकता है फ्लेक्स बॉक्स से भी आपको जरूरी नहीं है कि केवल ग्रिड जैसा ही स्ट्रक्चर चाहिए अपने एलिमेंट के अंदर, हो सकता है आपको कुछ और डिफरेंट स्ट्रक्चर चाहिए, तो वो हेल्प करता है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, वो ज्यादा स्टेबिलिटी है एंड ज्यादा हैंडल कर सकता है, ठीक है। नाउ ये स्लाइड मैं एक्सप्लेन करती हूँ एंड देन उसके बाद में मैं पूछूंगी ये दोनों स्लाइड आपको समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो किसी भी कंटेनर को या किसी भी एलिमेंट को फ्लेक्स बॉक्स बनाने के लिए हमें डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप हेडिंग देख रहे हो इसमें डी कैपिटल है, डी कैपिटल यूज मत करना, ठीक है। डी हमेशा स्मॉल लेटर में होगा, या फिर जितनी भी सीएसएस की प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर के अंदर आती है, ठीक है। तो डिस्प्ले स्मॉल लेटर्स में सारा एंड देन फ्लेक्स जो कि उसकी वैल्यू है वो भी स्मॉल लेटर के अंदर ही आएगी, ठीक है। तो जब आप किसी कंटेनर एलिमेंट का मतलब होता है डिव, जब आप किसी कंटेनर एलिमेंट को ये प्रॉपर्टी देते हो, डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हो, तो वो जो कंटेनर है वो फ्लेक्स कंटेनर बन जाता है, ठीक है। उसको हम फ्लेक्स कंटेनर कहते हैं, यानी उसको हम फ्लेक्स बॉक्स कह सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जितने भी चाइल्ड हैं उसके, ठीक है, जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स हैं उसके, उनको हम कहेंगे फ्लेक्स आइटम्स, ठीक है। तो हमारे पास में दो चीजें हमें यहाँ समझ में आई कि जब हम किसी कंटेनर एलिमेंट जैसे कि डिव को हम अगर डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं तो वो फ्लेक्स कंटेनर कहलाता है, और उसके अंदर जो भी चाइल्ड एलिमेंट है जैसे कि पैराग्राफ हो गया, इमेज हो गया, या फिर कोई से भी एलिमेंट जो मैंने आपको HTML के अंदर सिखाए थे वो सब फ्लेक्स आइटम्स कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि वो एक फ्लेक्स कंटेनर के अंदर रैप है, ठीक है। नाउ फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। एक बात आप हमेशा याद रखना, जब आपको फ्लेक्स, अब ये जो फ्लेक्स डायरेक्शंस और जो आगे जितनी भी स्लाइड्स आने वाली हैं वो सब क्या बता रही हैं, वो सब बता रही हैं फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज आपको बता रही है, ठीक है। कि जैसे ये कि आप कैसे एक फ्लेक्स आइटम के ऊपर प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप फ्लेक्स डायरेक्शन यूज कर रहे हो, या फिर जो मैं आगे स्लाइड्स में आपको प्रॉपर्टीज बताने जा रही हूँ, उन सब प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप डिस्प्ले फ्लेक्स पहले अपने कंटेनर को बनाओ, वरना आप कोई सी भी प्रॉपर्टी यूज करो वो कोई भी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट नहीं होगी उस कंटेनर के ऊपर, ठीक है। तो पहले अपने जो भी कंटेनर है उसको डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी दो, ताकि वो समझे कि ओके पहले मैं यहाँ पे फ्लेक्स कंटेनर हूँ एंड मुझे ये सारी प्रॉपर्टीज को अडेप्ट करना है, चाहे वो फ्लेक्स डायरेक्शन की हो, चाहे वो फ्लेक्स रैप की हो, चाहे फिर वो जस्टिफाई कंटेंट की हो, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, वो है फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी। आपने पहले एक फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होता है, आपने एक कंटेनर बनाया, ठीक है, फ्लेक्स कंटेनर बनाया, उस फ्लेक्स कंटेनर के अंदर खूब सारे चाइल्ड एलिमेंट्स है, ठीक है। उन सारे चाइल्ड एलिमेंट्स को कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, क्या उनको रो की डायरेक्शन में होना चाहिए, क्या उनको कॉलम की डायरेक्शन में होना चाहिए, वो बताती है फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी। एंड सिमिलरली उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो फर्स्ट जो लेटर्स हैं वो सारे स्मॉल में होंगे, ठीक है, जितने भी लेटर्स है वो सारे स्मॉल में जाएंगे उसके, ठीक है। यानी कि F भी स्मॉल में आएगा एंड D भी यहाँ पे स्मॉल में आएगा, बीच में आपको हाइफन लगाना है, जैसे कि आप नीचे वाली लाइंस पे देख सकते हो, फ्लेक्स डायरेक्शन रो एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। तो ये फ्लेक्स आइटम की डायरेक्शन बताती है फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर के अंदर, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जब भी हम फ्लेक्स बॉक्स का यूज कर रहे हैं तो हमें दो चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो दो चीजें होती है मेन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस, ठीक है। तो मेन एक्सिस क्या होती है, मैंने फ्लेक्स बॉक्स रो किया, ठीक है, जैसे ही मैंने फ्लेक्स बॉक्स रो किया तो जो मेन एक्सिस होगी वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ठीक है, रो हो जाएगी, यानी कि फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मेन एक्सिस डिफाइन होती है। अगर मैंने मेन एक्सिस करी रो तो यानी कि अगर मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन करी रो तो इसका मतलब जो मेन एक्सिस है वो भी रो है, रो के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन कर दी कॉलम तो मेन एक्सिस हो गई कॉलम, ठीक है। एंड क्रॉस एक्सिस उस मेन एक्सिस के परपेंडिकुलर आती है। परपेंडिकुलर का मतलब कि अगर मैंने मेन एक्सिस रो करी तो जो मेरी क्रॉस एक्सिस होगी वो कॉलम होएगी, और अगर मैंने मेरी मेन एक्सिस कॉलम करी तो जो क्रॉस एक्सिस हुई वो रो होएगी, ठीक है।
तो इस तरीके से हम मेन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्टिल अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अभी आपको VS कोड के अंदर शो करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। सो डिस्प्ले फ्लेक्स समझ में आ रहा हो, बता दिया मैंने आपको, फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने आपको बता दी, लेआउट के बारे में मैंने बता दिया। तो पहले आप मुझे बताओ कि आपको ये दोनों स्लाइड समझ में आई, या मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करूँ, या फिर मैं आपको VS कोड के ऊपर इनको एक्सप्लेन करूँ। ओके, ठीक है। तो मैं आपको भी शो करती हूँ VS कोड के अंदर, ठीक है। तो अब हमें जो P है इसका कोई काम नहीं है, अब हमें जो भी काम है वो सिंपली इन div एलिमेंट्स, div और इसकी एलिमेंट्स का है, ठीक है। मैंने इसका कमेंट हटा दिया और मैंने यहाँ से जो P के ऊपर मैंने जो भी डिजाइन एंड स्टाइल्स दी थी वो सब मैंने हटा दिया। नाउ अब अपनी सबसे पहले आप क्लासेस पे फोकस करो। जो div की मैंने क्लास दी है वो है बॉक्स फ्लेक्स, यानी कि इसको मैंने बॉक्स फ्लेक्स अभी क्लास दी है, यानी कि ये फ्लेक्स बॉक्स है। लेकिन ये फ्लेक्स बॉक्स है या नहीं है ये इसकी क्लास के नेम से डिफाइन नहीं हो रहा है, ये डिफाइन हो रहा है कि मैंने क्या इसकी क्लास जो इसकी प्रॉपर्टी में डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है। तो आप देख रहे हो कि मैंने इसकी जो प्रॉपर्टी है, यानी कि इस क्लास के अंदर मैंने ये प्रॉपर्टी ऐड करी है डिस्प्ले फ्लेक्स, इस कारण से ये एक फ्लेक्स कंटेनर है, ठीक है। एंड इसके अंदर मैंने 4 डिव आइटम डिव कंटेनर और स्टोर करे हैं। तो ये जो चारों कंटेनर है वो क्या कहलाएंगे, ये चारों कंटेनर कहलाएंगे फ्लेक्स आइटम्स, ठीक है। तो ये आउटर कंटेनर हो गया फ्लेक्स कंटेनर, और ये जो चारों इनर एलिमेंट्स हैं ये हो गए फ्लेक्स आइटम्स, ठीक है। देन मैंने बॉक्स नाम की सेम क्लास यहाँ पे सबके लिए यूज करी है। जो बॉक्स नाम की जो सेम क्लास है वो मैंने इसलिए करी ताकि इन सबको हाइट एंड विड्थ मिल जाए। इन सबकी हाइट एंड विड्थ क्या है, 100 पिक्सल, ठीक है। देन इसके बाद में मैंने सबको इंडिविजुअल क्लास दी है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 क्यों दी है, ताकि हम इसके जो बैकग्राउंड कलर्स हैं उनमें देख सके कि कौन सा बैकग्राउंड कलर मतलब किस तरीके से जो चेंजेस हैं वो शो हो रहे हैं। अगर कलर्स के थ्रू हम देखेंगे तो सिंपली हम जो फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टीज है उससे जो भी चेंजेस हो पा रहे हैं वो हम इजीली देख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ हम इन चेंजेस को देखते हैं। तो नाउ जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे ना, अभी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। अभी आप जाके देखोगे तो कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे। जैसे ही आप करते हो फ्लेक्स डायरेक्शन रो, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है, ठीक है। यानी कि रो के फॉर्म में आ गए हैं, ठीक है। ये रो यानी कि अब इसकी मेन एक्सिस क्या है, इसकी मेन एक्सिस है ये वाली जो इस तरीके से जा रही है, रो इसकी मेन एक्सिस हो गई। और इसकी क्रॉस एक्सिस क्या है, क्रॉस एक्सिस कॉलम हो चुकी है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पहले से ही हो रहा होगा। लो अब मैं दिखा देती हूँ आपको कि ये पहले से था या फिर नहीं था, ताकि आपको डिफरेंस शो हो जाए। एक मिनट डिस्प्ले फ्लेक्स एंड ओके। मैंने ना इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट, इन सबकी हाइट क्योंकि सॉरी विड्थ जो मैंने इन सबकी 100 कर दिए, इस कारण से ये सब एक ही लाइन में एडजस्ट हो गए हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इनको दूसरी लाइन में एडजस्ट करके देखते हैं, मतलब सॉरी दूसरे क्रॉस कॉलम के ऊपर एडजस्ट करके देखते हैं, ठीक है। अब ये होता है या नहीं होता इससे पता चल जाएगा, ठीक है। ये कॉलम वाइज आ गए हैं, ठीक है। पहले क्या था कि जो ये विड्थ थी उस मतलब ये सबकी विड्थ 100 पिक्सल थी, ठीक है। इस कारण से ये एक ही लाइन में सब एडजस्ट हो गए, ठीक है। इसलिए वो रो ही रहनी थी। लेकिन जैसे ही मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम की तो ये एक दूसरे के नीचे अलाइन हो गए, ठीक है। तो इस तरह अब इस केस के अंदर मेन एक्सिस क्या हुई, कॉलम, एंड क्रॉस एक्सिस क्या हुई, रो, ठीक है। नाउ जस्टिफाई कंटेंट की बारी। जस्टिफाई कंटेंट, ओके पहले आपको एक्सप्लेन कर देते जस्टिफाई कंटेंट होता क्या है, ठीक है। ये देख लिया, डिस्प्ले फ्लेक्स देख ही लिया कि कौन से फ्लेक्स कंटेनर होते हैं और कौन सा फ्लेक्स आइटम्स होता है, ठीक है। नाउ हमने ये समझ लिया कि मेन एक्सिस क्या है, क्रॉस एक्सिस क्या है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो कैसे हो रही है और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कैसे हो रही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हम कैसे आइटम्स को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है।
नाउ हम पढ़ेंगे जस्टिफाई कंटेंट के बारे में, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट क्या काम करती है, जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस से अलाइन करती है फ्लेक्स आइटम्स को, ठीक है। कि जो मेन एक्सिस है उस पूरी मेन एक्सिस में जो आइटम्स है वो सबसे स्टार्ट में शो होने चाहिए, वो सारे आइटम्स एंड में शो होने चाहिए, वो सारे आइटम्स सेंटर के अंदर शो होने चाहिए, ठीक है। या फिर उनके बीच में जो स्पेस आनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना है, जो वैल्यूज होती है वो ये नीचे की जो 5 वैल्यू पॉइंट्स में लिखी हुई है सारी जस्टिफाई कंटेंट की वैल्यूज होती है, ठीक है। तो पहली वैल्यू क्या है, फ्लेक्स स्टार्ट, ये डिफॉल्ट वैल्यू है और ये क्या करेंगी, जो मेन एक्सिस है उसके स्टार्ट के अंदर सारे एलिमेंट्स को ऐड कर देगी, ठीक है। सारे एलिमेंट्स को स्टार्ट में शो करने लग जाएगी, ठीक है। जैसे आपने सेंटर किया तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेंटर में शो हो जाएंगे, फ्लेक्स एंड में सारे एलिमेंट्स एंड के अंदर शो होने लग जाएंगे। देन स्पेस बिटवीन कब हम यूज करेंगे, जब हमें चाहिए कि जो जितने भी हमारे फ्लेक्स आइटम्स हैं उनके बीच में हमें स्पेस चाहिए, ठीक है। और अगर हमें स्पेस अराउंड चाहिए, जब हमें फ्लेक्स आइटम्स के अराउंड स्पेस चाहिए तब हम स्पेस अराउंड वैल्यू का यूज करेंगे, ठीक है। अभी इन पांचों वैल्यू को हम VS कोड में ट्राई करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये पांचों वैल्यू कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो फ्लेक्स स्टार्ट तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्लेक्स स्टार्ट डिफॉल्ट होती है और जस्ट अभी आपने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा होगा कि फ्लेक्स स्टार्ट में सारे जितने भी चारों कंटेनर्स थे वो सारे आगे की साइड आ गए थे जो कि डिफॉल्ट वैल्यू के कारण आए हुए थे, ठीक है। नाउ सेंटर करके देखते हैं अपन अभी, ठीक है। ये स्टार्टिंग में है, अभी ये एंडिंग में कहाँ आएगा, इस जगह पे एंडिंग में आएगा, सेंटर में इस जगह पे आएगा एंड देन जो स्टार्ट है वो ऑलरेडी ये जो कंटेनर है वो स्टार्ट के अंदर है। नाउ हम देख लेते हैं, लेट्स एंड करके देखते हैं क्या वो एंड में आ रहा है। ओके, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी, और वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें इसकी हाइट एंड विड्थ भी डिफाइन करनी है, ठीक है। मैंने इसकी हाइट कर दी 100 VH एंड इसकी विड्थ कर दी मैंने 100 VW, जैसा हमने कल रिलेटिव यूनिट्स हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो ये इसके नीचे की साइड में आ गया, जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे नीचे की साइड में आ गए हैं फ्लेक्स एंड के कारण से। अब हम सेंटर करके देख लेते हैं एक बार। सेंटर में आ गए सारे एलिमेंट्स। अब एक बार स्पेस अराउंड करके देखते हैं। स्पेस अराउंड से क्या होता है कि आपको खुद से मार्जिन लेने की कोई जरूरत नहीं होती फ्लेक्स आइटम्स को, ये खुद ही मार्जिन ले लेते हैं, ठीक है। ये स्प्रेड हो गए अच्छे से, ठीक है। स्पेस अराउंड यानी कि देखो ये जो फर्स्ट बॉक्स है इसके आगे भी स्पेस है, नीचे भी स्पेस है, इन सब में ऐसा है कि ऊपर भी स्पेस है, नीचे भी स्पेस है। लेकिन अगर आपको स्पेस अराउंड नहीं करना है, स्पेस बिटवीन करना है, स्पेस बिटवीन मतलब इनके बीच में स्पेस होना चाहिए, इनके आसपास स्पेस नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे इनके आसपास, इनके बीच में जितना स्पेस है, इनके साइड में इतना स्पेस आप नहीं देख रहे हो, ठीक है। यानी कि ये इनके बीच में स्पेस देता है, ओके। तो ये हो गई हमारी जस्टिफाई कंटेंट वाली स्लाइड, ठीक है। ये तो आपने पहले पढ़ा डिस्प्ले फ्लेक्स, देन आपको उसके अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप रो, अभी मतलब आपको रो भी करके दिखा देती हूँ, ठीक है। देखते हैं रो में होता है या नहीं होता है, ठीक है। ये रो के अकॉर्डिंग स्प्रेड हो गए, ठीक है। रो के अकॉर्डिंग उन्होंने स्पेस बिटवीन एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये हो गए रो के अकॉर्डिंग। एंड बाकी जब भी आप जस्टिफाई कंटेंट वाली प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, रो में भी सेम जैसे कॉलम में यूज हो रहा है वैसे ही यूज होएगी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया या फिर कोई प्रॉब्लम है अभी? ठीक है, ओके, दैट्स ग्रेट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अलाइन आइटम्स, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट क्या कर रहा था, जस्टिफाई कंटेंट मेन एक्सिस के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स है, जो आइटम्स है, फ्लेक्स आइटम्स को अलाइन कर रहा था, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट मेन एक्सिस के अंदर आइटम्स को एडजस्ट कर रहा था, अलाइन कर रहा था। लेकिन जो अलाइन आइटम है वो क्रॉस एक्सिस के अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे, अलाइन करेंगे, ठीक है। जैसे कि क्या होता है फ्लेक्स स्टार्ट, जितने भी हैं
वो क्रॉस एक्सिस के अकॉर्डिंग स्टार्ट में पहुंच जाओ, यानी जितने भी आइटम्स हैं वो क्रॉस एक्सिस के अकॉर्डिंग स्टार्ट में पहुंच जाएंगे, या फिर जितने भी आइटम्स हैं वो क्रॉस एक्सिस के अकॉर्डिंग सेंटर में आ जाएंगे या फिर एंड में आ जाएंगे। ठीक है, नाउ मैं आपको शो करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये दोनों ही पता है, जब भी आप फ्लेक्स पर प्रॉपर्टी यूज करते हो तो फ्लेक्स डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम्स, ये तीन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है। इसी के कारण से वो एडजस्ट होते हैं। ठीक है, मैं आपको शो करके दिखाती हूँ। अलाइन आइटम्स, ठीक है, मैंने कर दिया फ्लेक्स एंड। एक मिनट गाइस, ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो मैं क्या कर रही थी, हाँ, अलाइन आइटम्स मैंने क्या दिया, फ्लेक्स एंड। अब देखते हैं कि सीरियसली फ्लेक्स एंड में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है, सेंटर करके देखते हैं। ठीक है, ये सेंटर के अंदर आ गया है। अलाइन एंड के अंदर भी आता, बट आई थिंक मे बी कुछ प्रोसेस का इश्यू है। ठीक है, तो ये अलाइन आइटम्स में ये सेंटर पे आ गया। अभी आप साफ साफ देख रहे हो। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट जब हम कर रहे हैं तो वो मेन एक्सेस क्या हुई, रो हुई, और जो क्रॉस एक्सिस थी वो क्या हो गई, कॉलम हो गई। तो कॉलम के अकॉर्डिंग अलाइन आइटम ने उसको सेंटर पे कर दिया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपको किसी भी एलिमेंट को, बहुत सारे एलिमेंट को या किसी एक या दो एलिमेंट को सेंटर में लाना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फॉर्म क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो फॉर्म जब एक कोने में पड़ा रहेगा तो इट विल नॉट गुड लुक, मतलब इट विल नॉट लुक नाइस। ठीक है, तो इसके लिए आपको, तो उसका पूरा जो भी यूजर यूज कर रहा है उसका पूरा फोकस फॉर्म पे होगा, इसलिए आप वहां पे फ्लेक्स प्रॉपर्टीज या फ्लेक्स बॉक्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अलाइन आइटम यूज करना है। एंड स्ट्रेच जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो डिफॉल्ट होती है। ठीक है, तो अलाइन आइटम समझ में आ गया होगा आपको। ना मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि आपको समझ में आया, फिर मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करूँ। आपको समझ में आया अलाइन आइटम? ओके आरती, नेहा, ओके प्रिंस, कार्तिक, ठीक है देवांश। नाउ लेट्स गो इन नेक्स्ट वन। ठीक है, इसके बाद में प्रॉपर्टी आती है फ्लेक्स रैप की। ठीक है, ये क्या होते हैं, जब आपके जो फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, बट इतनी फ्रिक्वेंटली ये यूज नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंसिडर करो आपके पास में एक डिव एलिमेंट है। ठीक है, उस डिव एलिमेंट के सॉरी डिव कंटेनर है, और उस डिव कंटेनर के आपके पास में बहुत सारे इनर फ्लेक्स आइटम्स हैं। ठीक है, फ्लेक्स आइटम्स हैं, और वो आप नहीं चाहते हो कि बहुत गंदे तरीके से शो हो, यानी कि एक लाइन में कंजस्टेड हो जाए। ठीक है, या फिर तो आप चाहते हो कि वो नेक्स्ट लाइन में भी अगर इतना स्पेस है कि वो नेक्स्ट लाइन में जा सकते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन में भी चले जाए। इसके लिए क्या करते हो, फ्लेक्स रैप यूज करते हो। ठीक है, फ्लेक्स रैप करके आपको रैप नाम की उसकी वैल्यू देनी है। ठीक है, जैसे ही आप रैप वैल्यू देते हो तो जो फ्लेक्स आइटम्स है वो एक लाइन में नहीं मल्टीपल लाइंस में शो होना शुरू हो जाते हैं, बट केवल एक कंडीशन पे कि अगर वो जो आइटम्स आपने दिए हैं वो एक लाइन में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तभी वो नेक्स्ट लाइन में जाके एडजस्ट होना शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपने रैप लिखा तो वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, लेकिन अगर आपने रैप रिवर्स लिखा तो इसमें जो है जो कंटेनर्स हैं, जो फ्लेक्स आइटम्स है, वो रिवर्स ऑर्डर के अंदर रैप होंगे। ठीक है, तो ये भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, और इसके लिए हमें खूब सारे फ्लेक्स आइटम्स की जरूरत है। ठीक है, पर ये नहीं, इसलिए मैंने एक बार इसको कॉपी कर लिया। देखते हैं होता है नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मैंने खूब सारे उनको यूज कर लिया। नाउ लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक है, एकदम आपको रेनबो दिख रहा होगा बढ़िया सा। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ कि अगर ये नेक्स्ट लाइन में आ सके तो प्लीज ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, फ्लेक्स रैप
और फ्लेक्स सॉरी रैप, यहाँ पे रैप नाम की प्रॉपर्टी देनी है, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये नेक्स्ट लाइन में आते हैं या नहीं आते हैं। एक तो इसका ओवरफ्लो बंद करना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। एक काम करते हैं, इसकी बढ़ाते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन में आना शुरू हो गए हैं। ओवरफ्लो एक बार बंद करते हैं इसको। ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन में आप लोग आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और भी अगर हम बनाएं तो हो सकता है और भी आ जाए, तो लेट्स सी। ठीक है, जितने इसमें आ रहे थे इसमें आ गए, और जो बाकी के थे वो नेक्स्ट लाइन में शो हो गए हैं फ्लेक्स रैप के कारण। ठीक है, अगर हम फ्लेक्स रैप नहीं लगाए तो क्या होता है, एक बार देखते हैं। ठीक है, ये सब कैसे जैसे करके एक ही लाइन में एडजस्ट हो गए हैं, इसलिए फ्लेक्स रैप लगाना जरूरी है ताकि आपकी जो वेबसाइट है, जो एलिमेंट्स है वो अच्छे से दिखें। ठीक है, अभी आपको समझ में आया या फिर कोई प्रॉब्लम है? ओके विनीत, ठीक है, तो आप फ्लेक्स रैप यूज कर सकते हो इस तरीके से। नाउ अगर अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ क्या करती है, देखो अभी तक आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी, जस्टिफाई कंटेंट पढ़ा, चाहे आपने अलाइन आइटम पढ़ा, ठीक है, चाहे आपने फ्लेक्स रैप पढ़ा, ठीक है, और फ्लेक्स डायरेक्शन पढ़ा, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है। किसके अंदर आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी है, आपको ये प्रॉपर्टीज यूज करनी है फ्लेक्स कंटेनर के अंदर। जो आप जिस कंटेनर को आपने फ्लेक्स कंटेनर बनाया है उसमें आपको ये सारी प्रॉपर्टीज यूज करनी है। लेकिन इकलौती अलाइन सेल्फ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आपको फ्लेक्स आइटम्स के अंदर यूज करना है। ठीक है, जिनको आप फ्लेक्स आइटम्स में यूज कर सकते हो, वो अपने इंडिविजुअली क्रॉस वो अपने जो आइटम्स है, फ्लेक्स आइटम्स है, उसको इंडिविजुअली क्रॉस एक्सिस के अकॉर्डिंग उसको अलाइन करती है। ठीक है, यानी कि इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। मैं इसको यहाँ तक डिलीट कर देती हूँ पहले, इतने सारे कोई काम की नहीं है हमें अभी। ठीक है, अब देखते हैं, ये हमारे पास में 4 आ गए। अब हमें क्या लगानी है, अलाइन सेल्फ। ठीक है, अलाइन सेल्फ हमें लगानी है, तो हम इस पे नहीं लगाएंगे अलाइन सेल्फ, ठीक है, हम इन पे लगाएंगे, बॉक्स 1 पे। ये तो क्या था, ये तो था फ्लेक्स कंटेनर, और ये क्या है, फ्लेक्स आइटम। ठीक है, तो हम लगा रहे हैं अलाइन सेल्फ। ठीक है, अलाइन सेल्फ नाम की प्रॉपर्टी यूज करी, हमने कर दिया इसको स्टार्ट, फ्लेक्स स्टार्ट। लेट्स सी। ठीक है, जो मैंने बॉक्स 1 को स्टार्ट में दिया, तो ये बॉक्स 1 ओनली अकेला ये बॉक्स 1 जाके ऊपर बैठ गया है। ठीक है, और बाकी सब उसी रो के अंदर है, क्योंकि बाकी सब में मैंने अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी ऐड नहीं करी है। ठीक है, तो जिसमें आप ऐड करोगे उसमें वो एक्सेप्ट कर लेगा अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी को। नाउ एक काम करते हैं, बॉक्स 3 को एंड में ले जाकर देखते हैं। और याद रखना आपको फ्लेक्स एंड यूज करना है प्रॉपरली। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इस तरीके से भी आप डिजाइन शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कारण से ये फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ब्राउजर के ऊपर डिफरेंट वेज में किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करवाती है ना, और बहुत सारी फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो अभी आपको अलाइन कौन सा बोल रही थी मैं, अलाइन सेल्फ एंड फ्लेक्स रैप दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई थी, क्या आपको समझ में आई? ठीक है, ओके, बाकी सब सो रहे हैं क्या? मुझे एक बात बताओ कि
इतनी सुबह सुबह आप लोग नहा धो के नहीं बैठते, या फिर ऐसे ही उठते ही बैठ जाते हो क्लास लेने? हाँ हेमंत, लगा ही था मुझे हेमंत, क्योंकि मुझे लगता है जैसे ही अभी एलेना का नाम आया तो आप सब ऐसे हक्के बक्के हो गए कि अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा, मैं तो अच्छा भी नहीं लग रहा हूँ, मैं तो अच्छी भी नहीं लग रही हूँ, तो कैसे मैं अपना वीडियो ऑन कर दूँ। अच्छा विनीत, तो शायद आपने तो अपना वीडियो ऑन किया था क्या? याद नहीं मुझे, कोई बात नहीं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप रिफ्रेश होकर क्लासेस लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छी चीज़ें आएंगी। बट स्टिल आप लोग की एज भी मेच्योर वाली है, तो आप लोगों को पता होगा आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, तो उस अकॉर्डिंग आप देख लेना। बस मुझे तो केवल इस चीज़ से मतलब है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, एंड स्टिल आप प्रिपेयर होके बैठा करो, ठीक है? कि हो सकता है कोई और किसी दिन कोई और स्पेशल गेस्ट आ जाए, फिर चाइना वालों के सामने इंडिया वालों की हो जाए, समझ रहे हो, है ना? स्पेस बिटवीन अपने अकॉर्डिंग नहीं दे सकते हैं, वो खुद अपने मन से दे देता है। यानी कि स्पेस बिटवीन का मतलब क्या होता है कि मैंने ये दो बॉक्सेस बनाई, ठीक है, वो अगर मैं स्पेस बिटवीन नहीं दूंगी तो वो ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, लेकिन जैसे ही मैंने उसमें स्पेस बिटवीन दिया तो इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगी। जितना भी स्पेस ब्राउजर दे सकता है वो उतनी सारी स्पेस इन दोनों के बीच में दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने अराउंड किया तो इनकी इस साइड भी स्पेस आने लग जाएगी, ठीक है। तो आप स्पेस बिटवीन अपने अकॉर्डिंग नहीं दे सकते हो, वो ब्राउजर खुद डिफाइन करता है कि ओके जितनी भी मेरे पास अवेलेबल स्पेस है वो मैं सारी अवेलेबल स्पेस इन दोनों फ्लेक्स आइटम्स के बीच में ऐड कर दूंगा, ठीक है। ओके ओके हेमंत, नाउ हमने फ्लेक्स ग्राफ देख लिया, अलाइन सेल्फ देख लिया। नाउ फाइनली इट्स टाइम टू डू अ कोडिंग प्रैक्टिस, ठीक है। आज का सेशन बहुत लंबा नहीं था, एंड फिर भी स्टिल वही टाइम हो गया क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर स्पेशल गेस्ट आ गए थे हमारे। तो आज की जो कोडिंग प्रैक्टिस है वो है, हमें बनाना है नेटफ्लिक्स प्लान सेक्शन सिलेक्शन सेक्शन, जहाँ पे आप डिफरेंट प्लान्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप में से अगर बहुत सारे लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे अपने को बाय करना होता है एक प्लान जो भी अपने लिए अफोर्डेबल है। तो उसी तरीके से सेम आपको बनाने हैं 3 प्लान, मोबाइल, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम प्लान, ठीक है। वहाँ पे क्लीन लेआउट होना चाहिए, प्राइस शो होनी चाहिए, बोल्ड फॉर्म में बटन्स होने चाहिए, ठीक है। एंड सेम नेटफ्लिक्स की यूआई को आपको मिमिक करना है, ठीक है। नाउ ये जो नीचे 7 चीजें लिखी हैं, ठीक है, जो नीचे 7 चीजें लिखी हैं उन सबको आपको ट्राई करना है, ठीक है। जैसे 3 टाइप के प्लान बनाने हैं, उनकी सबकी प्राइस शो करनी है, जैसे 149 फॉर एग्जांपल, एंड देन उसके बाद वीडियो क्वालिटी रेजोल्यूशन ये भी बताना है आपको क्या क्या फीचर आपको मिलने वाले हैं इस प्लान के अंदर। देन आपको सब्सक्राइब बटन ऐड करना है। जितनी भी प्रॉपर्टी आज मैंने यूज बोली है आपको यूज करने के लिए, चाहे वो फ्लेक्स बॉक्स हो या फिर वो मिनिमम विड्थ हो या मैक्सिमम विड्थ हो, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है उसके अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे जो 7 पॉइंट लिखा है ये मैंने शायद पूरा नहीं लिखा है। इस 7 पॉइंट का बेसिकली मीन ये था कि देखो क्या होता है कि सीएसएस के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। कुछ मेन प्रॉपर्टीज ही कोर्सेज के अंदर आपको पढ़ाई जाती हैं जो कि बहुत कोर प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल एक जो डेवलपर होता है वो कंटिन्यूसली एक्सप्लोर करता रहता है नई नई टेक्नोलॉजीज को, नए वेज को, नई प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसके अंदर एक तो यूज ट्राई करो शेडो प्रॉपर्टी को, ठीक है। आपको वेबसाइट के अंदर इजीली मिल जाएंगी, डिफरेंट वेबसाइट आपको एक्सप्लोर करनी, वहां पे आपको शेडो प्रॉपर्टी मिल जाएंगी। तो जो कार्ड आप बनाओगे, तीन डिफरेंट कार्ड्स बनाओगे, उसके अंदर आप शेडो प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो सेवेंथ जो है वो बता रहा है कि आपको एक्सप्लोर करनी है, ये एक्सप्लोर करनी है शेडो प्रॉपर्टी को आप एक हवर को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। हवर में आपको सिंपली क्या करना होता है, आप हवर किस में करोगे, बटन के ऊपर हवर करना है, फिर आप कार्ड के ऊपर भी हवर यूज कर सकते हो, ठीक है। और शेडो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं करना होता आपको, जिससे आप क्लास ले रहे हो या फिर आप आईडी ले रहे हो या फिर आप टैग ले रहे हो, सिंपली आपको टैग्स यूज करने हैं, एंड देन उसके कॉलन लगाना है,
कॉलन में आपको हवर लिखना है एंड देन ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टी यूज कर देनी है सिंपली, ठीक है, कि जब हवर होगा तो जितनी भी प्रॉपर्टी इनर लिखी हुई है जब उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे हवर करेंगे तो जो भी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं वो प्रॉपर्टीज होना शुरू हो जाएंगी। जैसे आप हवर लिखो उसके अंदर आप लिख देना बैकग्राउंड वाइट या बैकग्राउंड डार्क रेड, ठीक है, तो इससे आप मतलब इससे थोड़ी सी डायनामिकनेस आएगी, आपकी जो डायनामिक बन जाएगी आपकी वेबसाइट, ठीक है। तो अगर नहीं हो पाता है तो दैट्स टोटली नॉर्मल, ठीक है, दैट्स टोटली फाइन, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, बट स्टिल आप एक्सप्लोर करो, दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है, आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा ओके आज मैंने एक नई प्रॉपर्टी सीखी, ठीक है। और कंटिन्यूसली आगे भी जब आप कोई वेबसाइट बनाओ, ठीक है, तो भी आप अपनी नई प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करते रहो, क्योंकि जब आप नई प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करोगे तब आपको दिमाग में आएगा अच्छा मैंने ये काम ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, ठीक है, तो मैं इसको वापस से यूज कर पाऊंगा, ठीक है। सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करना, और जो आज जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं या जो मैंने आपको जो कोडिंग प्रैक्टिस दी है ये आप करना, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कैसे आप अपने जो अपनी क्रिएटिवनेस आप यूज करते हो। तो स्टिल मैंने कोड क्रिएट किया है, मैंने सबको यूआई दिखाई है, ठीक है, आपका जो यूआई यूएक्स डेवलपर है वो मैं हूँ। तो ये जो इस तरीके का आपको एक प्लान बनाना है, ठीक है, इन सबके बीच में प्रॉपर स्पेस है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक पूरा डिव क्रिएट करना, ठीक है, जिसके अंदर आपको हेडिंग को ऐड मत करना डिव के अंदर, ठीक है, आपको किसको ऐड करना है, इन तीनों कार्ड्स को ऐड करना है उस डिव के अंदर। देन आपको देनी है उसमें फ्लेक्स डायरेक्शन रो, ठीक है, रो के अंदर वो सेट हो जाएगी। देन आप क्या देनी है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये जो तीनों आइटम्स हैं वो सेंटर में आ जाएंगे। अब वो सेंटर में आके एक दूसरे से चिपक जाएंगे, तो उनको चिपकाना नहीं है, उनको दूर करने के लिए क्या करोगे, इन सबको मार्जिन प्रॉपर्टी भी दोगे, इन जितने भी फ्लेक्स आइटम्स हैं इन सबको आप मार्जिन प्रॉपर्टी देना, ताकि इनके बीच में जितनी आपको स्पेस दिख रही है वो स्पेस बन जाए। एंड देन नीचे आप देख रहे हो कि जितने भी फीचर्स हैं वो लिखे हुए हैं, प्राइसिंग लिखी है वो लिखी हुई है, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो आपको होपफुली आप इसको बेस्ट करो। तो कैसी लगी आपको कोडिंग प्रैक्टिस, और क्या आपको उसमें कुछ पूछना है कि कैसे बनाएं या कैसे क्या करें? कोई क्वेश्चन है कोडिंग प्रैक्टिस के बारे में आपका, या फिर आप इसको करेंगे? इट विल बी मतलब समझ में आ गई कोडिंग प्रैक्टिस आपको भी क्या करना है? ओके नेहा, ओके आरती, ठीक है, और कोई करे? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं दिवांशु, कल पूछ लेना, लेकिन मैं बताऊंगी केवल एक ही कंडीशन पे, जब आपने काम किया होगा, ठीक है। अगर आपने अपने हाथ भी नहीं चलाए ना लैपटॉप के ऊपर तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, इसलिए अपना आधा प्रिपेयर्ड कोड जितना भी आप बीच के अंदर छोड़ रखा है ना आपने, उतना आपको करना है। मैं बताऊंगी हेमंत आपका भी। मैं कोड एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। देखो देवांशु एंड विनीत, एक बात सुनो आप मेरी, ठीक है, मैं कोड एक्सप्लेन कर दूंगी आपको कल, ठीक है, लेकिन एक चीज होनी चाहिए, मैं केवल एक ही कंडीशन पे वो कोड एक्सप्लेन करूंगी, जब मुझे आपकी स्क्रीन के ऊपर हाफ कोड मिलेगा। जब आप अपनी स्क्रीन पे आधा कोड करके लेके आएंगे तब मुझे फील होगा कि ओके ठीक है इन्होंने एटलीस्ट ट्राई तो किया है, ठीक है। तो ट्राई करना आपकी जिम्मे है, अगर आपने ट्राई किया होगा तो रेस्ट ऑफ द कोड मैं आपको और बता दूंगी कल कि आपको इस तरीके से इसको यूज करना है, इस तरीके से आप फ्लेक्स बॉक्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप कोड पे ट्राई करेंगे और उसको यूज करके लेके आएंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि अगर आप कंफ्यूज हो गए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी चाहिए, तो आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज ट्राई करके देख लो, आपको रिवाइज भी हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा कि अच्छा ये प्रॉपर्टी इस चीज के काम आती है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ हेक्टिक चीज नहीं है, 4-5 प्रॉपर्टी सारी थी, ठीक है। तो आप सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो एंड ट्राई करना प्रॉपर्ली क्रिएट करने का। एंड एक और कोई क्वेश्चन कर रहा था कोड एक्सप्लेन, ओके ओके हेमंत, जो साइड में स्पेस कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। कहाँ गया? ओके देखो, ये पूरी वेबसाइट, ये जो पूरी स्लाइड है आप उस पूरी स्लाइड को वेबसाइट मान लो, ठीक है। देन अब यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे स्पेस है, इसका मतलब ये जो तीन कार्ड्स हैं ये पूरी वेबसाइट के सेंटर में आएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है
इसके लिए आपको करना है, पहले तो आप करोगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जो इसका जो ये जो तीनों फ्लेक्स आइटम्स हैं जिस कंटेनर के अंदर है उसको आप डिस्प्ले फ्लेक्स करना, ठीक है। उसके अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन क्या डालोगे, रो, ठीक है, क्योंकि एज एक रो के अंदर अलाइन है, ठीक है। तो क्या डालोगे आप, फ्लेक्स डायरेक्शन रो। देन जस्टिफाई कंटेंट आपको करना है सेंटर। जैसे ही आप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करोगे तो ये सारे सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है, सारे एक साथ में सेंटर हो जाएंगे। देन आपको ऊपर भी स्पेस देनी है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। तो ये ऊपर से स्पेस देके पूरी वेबसाइट के सेंटर में शो होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी आप यूज करो, डिस्प्ले वाली, फ्लेक्स डायरेक्शन वाली, देन जस्टिफाई कंटेंट वाली एंड अलाइन आइटम वाली, ठीक है। और ये खुद ब खुद ही सेंटर में शो होने लग जाएंगे, ठीक है। एंड बाकी प्रॉपर्टीज भी आप ट्राई करना यूज करने की, ठीक है। तो अब बताओ हेमंत, आपको समझ में आया या नहीं आया, कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करनी समझ में आया हेमंत आपको? नहीं, देखो स्पेस बिटवीन क्या होता है, जब ये पूरी जो, एक मिनट मैं आपको करके ही बताती हूँ स्पेस बिटवीन क्या होता है, ठीक है। एक बार मैं इसको हटाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्पेस बिटवीन ऐड कर रखा है। अब मैं देखती हूँ कि क्या आता है इसका आंसर। स्पेस बिटवीन क्या है, जितना भी अवेलेबल स्पेस था उसमें बीच में है, ठीक है, बीच में है, साइड में स्पेस ना कि इस साइड आपको स्पेस दिख रहा है इसके बाद पीछे नहीं ना, नहीं दिख रहा है इसे, तो ये स्पेस बिटवीन नहीं है। नाम से ही पता चल रहा है स्पेस बिटवीन का मतलब आइटम्स के बीच में स्पेस, ठीक है। तो बीच में स्पेस के लिए स्पेस बिटवीन यूज कर सकते हैं। और स्पेस अराउंड, नाम से ही पता चल रहा है स्पेस अराउंड का मतलब फ्लेक्स आइटम्स के अराउंड यानी चारों तरफ स्पेस, ठीक है। जब आप स्पेस अराउंड करोगे तो इसके इस साइड भी आपको स्पेस दिखने लग जाएगा। जब आप यूज करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। अभी आप मेरे से मत पूछो, आप पहले यूज करके आओ, देन कल मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से स्पेस आएगा। जब आप यूज करोगे तो आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि अच्छा ये प्रॉपर्टी इस काम करती है और ये प्रॉपर्टी इस चीज के लिए यूज होती है, ठीक है, ठीक है हेमंत। ओके, सो नाउ एक रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने सेशन क्या क्या किया। तो सबसे पहले तो हमने आज के सेशन के अंदर एलेना जी से मुलाकात करी, ठीक है। देन उसके बाद में हमने साइजिंग एलिमेंट पढ़े जो कि इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक साइजिंग थी उसमें। देन हमने ओवरफ्लो प्रॉपर्टी पढ़ी जिसमें हम एक्स के अंदर एंड वाई के अंदर भी यूज कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, ओके, इसके डिफरेंट वैल्यूज पढ़े थे। देन हमने मैक्स एंड मिन साइजेस पढ़ी थी हाइट एंड विड्थ के लिए, ठीक है, और वो किस तरीके से यूज होती है। और आप ये भी यूज करना प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है। कौन सी प्रैक्टिस के अंदर, कोडिंग प्रैक्टिस में, ठीक है। देन उसके बाद में लेआउट पढ़े, 2 टाइप के लेआउट होते हैं, लेआउट एक्चुअल में होता क्या है। देन हमने पढ़ा डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को, फ्लेक्स डायरेक्शन को, अलाइन आइटम को, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन जो कि मेन एक्सिस के अकॉर्डिंग आइटम्स को अलाइन कर देती है, अलाइन आइटम जो क्रॉस एक्सिस के अकॉर्डिंग अलाइन करती है, जस्टिफाई कंटेंट जो जस्टिफाई करती है आइटम्स को मेन एक्सिस के अकॉर्डिंग, फ्लेक्स रैप जो एडजस्ट करते हैं फ्लेक्स आइटम्स को मल्टीपल लाइंस के अंदर, ठीक है। अलाइन सेल्फ आइटम जो आइटम है वो अपने आप को उस जो क्रॉस एक्सिस है उसमें कहाँ पे अलाइन कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे रखेंगे, तो उस पे वो इंडिविजुअल फ्लेक्स आइटम पे यूज होती है प्रॉपर्टी, ठीक है। देन हमने नेटफ्लिक्स प्लान की एक कोडिंग प्रैक्टिस देखी जो मैं आशा करती हूँ कि आप कल करके लेके आएंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सेशन एंड योर कोडिंग प्रैक्टिस जो आप आज करने वाले हैं। आज का ज़्यादा हेक्टिक नहीं था बट फ्लेक्स बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और आगे भी यूज़ होती है। जब आप इंटरव्यूज में जाते हैं तो यूज़ होती है, एंड वेबसाइट जब आप क्रिएट करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन, आपके जो पेशेंस के लिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैमरा ऑन करने के लिए, क्योंकि क्या है जितने भी स्टूडेंट्स ने कैमरा ऑन किए मेरे कहने पे उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने एटलीस्ट ऐसा मुझे फील नहीं करवाया कि मेरे वर्ड्स कोई भी मीनिंग नहीं रखते हैं, ठीक है। हाँ नेहा बताओ, आप बताओ क्या क्वेश्चन है आपका नेहा। आप म्यूट हटा सकते हो नेहा, बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है। एंकर टाइम में आई थिंक आपको 2 एट्रीब्यूट यूज करना होता है, 2 मेन एट्रीब्यूट ऐसे करके कुछ एट्रीब्यूट आता है, आप गूगल पे सर्च करना, ठीक है। आप एंकर एलिमेंट लगाओ, देन आई थिंक उसमें कुछ 2 करके एट्रीब्यूट आता है, या तो आप वो यूज कर सकते हो, है ना।
हाँ हाँ, ये मेल टू यूज किया आपने इसको? ट्राई नहीं हुआ? मैं कल ट्राई करके बताऊंगी आपको, ठीक है, कि क्या पता हो रहा है नहीं हो रहा है, मे भी हो सकता है नहीं हो पा रहा हो, या फिर वो इनपुट एलिमेंट के अंदर यूज होता हो। ओके, अगर नहीं हो रहा है तो कल सबसे पहले हम यही टॉपिक लेंगे कि ये मेल टू से क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। देन अगर उसका कोई भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है तो मैं आपको उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन बता दूंगी, ठीक है। इज दिस फाइन नेहा? मेल टू ठीक है नेहा, कल अपन डिस्कस करेंगे, सबसे पहले यही टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और अगर मेरे दिमाग से निकल जाती है तो आप मुझे एक बार बता देना, ठीक है। ओके, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने मेरी बातों को सुना, ठीक है, एंड इम्प्लीमेंट भी किया, एंड वीडियो ऑन करने के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। मैं मेरे सेशंस में नहीं बोलती हूँ आपको वीडियो ऑन करने के लिए, मुझे पता है कि घर पे लोग कैसे रह रहे हैं, ठीक है, बट मेरी रिक्वेस्ट पे आपने किया, थैंक यू सो मच। ओके, हैव अ गुड डे देवांशु एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर द टुडे सेशन, एंड ओके, कल मिलते हैं, ठीक है, सी यू सून, बाय 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 देवांशु।